Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पे आज मैं इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। अगेन, अगर आप ये वाले चैप्टर के लिए ये पूरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस या लेक्चर्स आपने देखे हैं, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमारा जो फोकस था, हमारा जो कंसंट्रेशन था, वो था फॉरफीचर और री इशू पे। अब 2-3 या 4-5 बार हमने वो कर तो लिया है, बट उसके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है वैरायटी के, ये आज हम थोड़ा कवर अप करेंगे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मेरे पीछे के क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 है, सिचुएशन 3 है, क्योंकि 3 अलग अलग कंपनी के डिटेल्स दिए गए हैं। एट द वेरी बिगिनिंग दिस इज द क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज आपको लिखने हैं फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू। सो यू डोंट हैव टू वरी अगेन सर एप्लीकेशन का क्या, अलॉटमेंट का क्या, कॉल का क्या, वो पूरी कहानी हो चुकी है और वो आपसे पूछा मांगा नहीं जा रहा है। आपको पॉइंट नंबर ए पढ़ना है, बी एंड सी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि बी एंड सी अलग कंपनी है और उनकी परिस्थिति अलग है। ए क्या कहा है, आशा लिमिटेड फॉरफीटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 20 रुपये का शेयर है, थोड़ा अजीब है क्योंकि कभी 50 होता है, कभी 100 होता है, कभी 10 होता है, इसमें 20 है। इम्पॉर्टेंट है फॉरफीचर में कि वो जो शेयर्स थे कंपनी के डायरेक्टर्स ने कितना कॉल्ड अप किया है, क्योंकि अगर 100 रुपीज़ के शेयर है बट सिर्फ 80 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 80 के साथ हो सकता है, 100 के साथ नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, आज के पूरे प्रॉब्लम में आपका कंसंट्रेशन किस चीज़ पर है कि कितना अमाउंट कॉल्ड अप है, कितने शेयर्स फॉरफीटेड है और कितने री इशूड। ध्यान देना, कहा है 100 शेयर्स इन्होंने फॉरफीट किए, 20 रुपया का एक शेयर, और वो पूरा कॉल्ड अप था। आगे कॉल इन अरियर भी हो गया रहेगा, इसकी वजह से तो फॉरफीट किया उन्होंने। कहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। तो ये 3 रुपया और 5 रुपया, मतलब टोटल 8 रुपीज़ का पेमेंट नहीं हुआ है, वो बन गया कॉल इन अरियर। ओके, तो अगर आप मुझे 1 मिनट दो, पहले तो मैं ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट फॉरफीचर का जर्नल एंट्री है वो लिख के आपको दिखा देता हूँ। 100 शेयर्स इंटू 20 विच इज 2000 रुपीज़। कॉल इन अरियर इज the 3 and the 5 rupees, which is 8 rupees,
and the difference between both is share forfeiture. Okay, please do tell your mind that department which is the learning department, ये वाला, that 100 shares को जब जब्त किए, forfeit, taken back, बराबर, the company has on those 100 shares received some money from the shareholder, वो वापस नहीं रिटर्न करती, तो कंपनी के लिए ये जो पैसा है ये बन जाता है प्रॉफिट, जो शेयर फॉरफीचर में डाल देते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, 100 शेयर्स का प्रॉफिट 1200. ओके, अभी ये जो शेयर्स है नॉर्मली री इशू किए जाएंगे. टिल टुडे all shares were issued, but pay careful attention, second line, 80 of these were reissued at 15 per share fully paid. 20 रुपीज का शेयर है, बट क्योंकि ये सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं, इसको 15 रुपये में बेचा है. दैट ऑब्वियसली मीन्स देर इज गोइंग टू बी अ लॉस. वेन एवर री इशू इज डन, पैसा बैंक में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट 80 into 15, but it is actually a 20 rupee share, तो कैपिटल में 20 रुपया. The difference that you see of 400 rupees is the loss. Please understand, the difference that you see of 400 rupees is the loss. Okay, इससे ज़्यादा आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? फर्स्ट एंट्री में जो प्रॉफिट है शेयर फॉरफीचर में वो 100 शेयर्स का है. सेकेंड एंट्री में जो लॉस है 400 का वो 80 शेयर्स का है. शेयर फॉरफीचर पे मैं इतना क्यों आपका ध्यान खींच रहा हूं? बिकॉज द थर्ड एंट्री सेज कि शेयर फॉरफीचर में जो पैसा बच गया आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, बिकॉज दैट इज द रेगुलेशन, रूल, कायदा. नॉर्मली मैं आपको ये बोलता फर्स्ट एंट्री का 1200 माइनस सेकेंड एंट्री का 400, बट अगर आप ऑब्जर्व करो, नहीं सर आपने तो 960 लिखा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने प्रॉफिट 1200 की जगह पे 960 क्यों लिखा है, जल्दी से बता देता हूं. आप 100 शेयर्स के प्रॉफिट को 80 शेयर्स के लॉस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग लेवल है. सिंपल सी बात है, अगर 80 शेयर्स पे लॉस हुआ है, वही 80 शेयर्स के प्रॉफिट को आपको ढूंढना है. आपको एंट्री नंबर 1 में 100 शेयर्स का प्रॉफिट दिया है. आपको कुछ टेक्निक के द्वारा, जो काफ़ी सिंपल है, 80 शेयर्स का प्रॉफिट, क्योंकि 80 शेयर्स का प्रॉफिट लॉस कंपेयर होता है, 180 का कंपेयर नहीं होता, गलत होगा. देखो 960 कैसे आया? देखो, आपको 100 शेयर्स का फॉरफीचर दिया है 1200, आपको ढूंढना है 80 का कितना. मतलब सीधी सी बात है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये रफ वर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये रफ वर्क है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 80 into 1200 डिवाइड बाय 100 एंड आपका आंसर है 960. दिस इज हाउ यू गेट 960. और आज के पूरे प्रॉब्लम में आपका फोकस का केंद्र यही होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट लॉस शेयर फॉरफीचर जो होता है वो सेम नंबर ऑफ शेयर्स का ढूंढना है, अलग अलग का नहीं. अगर अलग अलग का हो, आपको अकॉर्डिंगली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर ढूंढना है. एंड द मोमेंट आप ये ढूंढो, आपका जो 560 का डिफरेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में. मतलब शेयर फॉरफीचर के अंदर अभी तक 20 शेयर्स जो री इशू नहीं हुए उसका फॉरफीचर है, और वो होना चाहिए. जब भी वो री इशू होगा तब वो कंसिडर किया जाएगा. ये था सिचुएशन 1 पहले कंपनी का. अब हमारा ध्यान जाएगा कंपनी 2 पे, जिसका नाम है भक्ति लिमिटेड. थोड़ी अलग कहानी. कहा है फॉरफीटेड 100 इक्विटी शेयर्स, इन्होंने भी 100, 10 ईच, 6 कॉल्ड अप. ये इंपॉर्टेंट है, 10 रुपए का शेयर बट 6 कॉल्ड अप. तो ये कॉल्ड अप बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे, ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर. तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपया है, शेयर होल्डर ने पे किया. मतलब बाकी का जो पैसा है उसने नहीं पे किया, वो रहेगा, वो कॉल इन अरियर का डिपार्टमेंट. तो एक मिनट,
उसके आगे रीड करने से, क्योंकि आगे री इशू की कहानी है। ये है 100 शेयर्स, है तो 10 के बट ओनली 6 कॉल्ड अप, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 कॉल्ड अप एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 5 रुपया दे दिया है, 6 कॉल्ड अप, बाकी का 4 रुपीज कॉल अप ही नहीं किया है, वो बाद में करेगी जब भी कंपनी को जरूरत पड़े। अगर 6 रुपया कॉल्ड अप है और शेयर होल्डर ने 5 दे दिया तो कितना नहीं दिया है, 1 रुपी। ये 1 रुपी हमारे लिए कॉल इन अरियर का काम करता है। तो मैं ये क्लैरिफाई करता हूं, क्या है 10 रुपए का शेयर बट कॉल्ड अप है 6, तो मल्टीप्लीकेशन 6 का है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कॉल इन अरियर कितना है, अरे अगर 6 रुपया आपने मांगा है और 5 मिल गया है तो 1 ही रुपया नहीं मिला है, ओनली वो 1 रुपया कॉल इन अरियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द बैलेंसिंग फिगर कम्स एज शेयर फॉरफीचर। 100 शेयर्स आपने फॉरफीट किए क्योंकि 1 रुपये का कॉल इन अरियर हो चुका है। फिर आपने कितने री इश्यू किए, पढ़ लीजिए। ऑफ दीज, इसमें से 80 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 6 पर शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने री इशू किया, आपने वो 6 रुपीज के लिए री इशू किया। द शेयर इज 6 कॉल्ड अप एंड यू हैव री इशूड फॉर 6, तो मतलब आपने कम के लिए री इशू नहीं किया। नॉर्मली री इशू कम प्राइस में होता है, तब जाके लॉस होता है, बट यहां पे आपके बैंक में 6 रुपीज आएगा और जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो भी 6 है। दैट मीन्स देर इज नो लॉस, एंड बिकॉज देर इज नो लॉस देर इज नो शेयर फॉरफीचर। आई रिपीट माई सेल्फ, दैट मीन्स देर इज नो लॉस, बिकॉज देर इज नो लॉस देर इज नो शेयर फॉरफीचर। पे एकदम, अगर आपको ये चैप्टर में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, ये प्रॉब्लम पे ध्यान बहुत देना, क्योंकि फॉरफीचर इशू में जो अलग वैरायटी आती है वो उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है। दैट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड इन दिस सिचुएशन 6 रुपीज इज कॉल्ड अप, 5 रुपीज इज रिसीव्ड, सो 1 इज कॉल इन अरियर। जब री इशू किया तो 6 रुपीज कॉल्ड अप को बेचा भी 6 में, तो कोई नुकसान होता ही नहीं है। तो लास्ट का जो एंट्री जो है विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगेन द क्वेश्चन, सर फर्स्ट एंट्री में तो 500 है, आपने कहीं को लिखा है 400 माइनस 0, 0 क्यों? क्योंकि सेकेंड एंट्री में तो शेयर फॉरफीचर है ही नहीं। सो फर्स्ट एंट्री का 500 लिखो, मैटर खत्म करो। नहीं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट एंट्री का जो शेयर फॉरफीचर है वो है 100 शेयर्स का। सेकेंड एंट्री का जो शेयर फॉरफीचर होना चाहिए था वो 80, भले ही 0 है बट वो 80 शेयर्स का है, देयरफॉर 180 कंपेयर नहीं होता। तो क्या करें, आपको 80 शेयर्स का फॉरफीचर ढूंढना है तो ऐसे ही करोगे। अच्छा 100 का तो 500 था, 80 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आया 400, एंड दैट इज हाउ मुझे एंट्री नंबर 3 में 400 लिखना था। एंट्री नंबर 1 में आशा और भक्ति में, दोनों में सोच वही थी, नतीजा अलग था, थिंकिंग वही थी। ओके, यहाँ पे आपको 400 इज द डिफरेंस विच इज द ट्रांसफर ऑफ द शेयर फॉरफीचर टू द कैपिटल रिजर्व। ये हुआ आपके पहले 2 कंपनीज और पहली 2 थोड़ी हटके वैरायटी। अगला पॉइंट नंबर सी, कोनाक लिमिटेड फॉरफीटेड 50 शेयर्स, नॉट 100, 50 ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। इंपॉर्टेंट, सेकेंड में था 6 कॉल्ड अप, वो अलग कंपनी, अभी है 8 कॉल्ड अप। ओके, तो कॉल्ड अप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो अनकॉल्ड अमाउंट है कंपनी को वो मौका मिलता है फ्यूचर में उसको कॉल करने का। ओके, द शेयर होल्डर फेल्ड टू पे 3 पर शेयर, तो 3 रुपया उसका कॉल इन अरियर होगा, 3 रुपया उसका कॉल इन अरियर होगा। ये हमारा फर्स्ट का फॉरफीचर का जर्नल एंट्री है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप अमाउंट विच इज 8 रुपीज, कॉल इन अरियर 3 रुपया नहीं भरा ना, बाकी का बचा शेयर फॉरफीचर। टिल नाउ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको फॉरफीचर का जो जर्नल एंट्री है उसकी सारी वेराइटी पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। नाउ इंपॉर्टेंट, ये में से 50 शेयर्स में से
कितने शेयर्स बेचे पढ़ लीजिए। लेटर ऑन 30 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर। प्लीज नोट ये 8 कॉल्ड अप है, तो 8 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 7 रुपए के लिए बेचा, मतलब लॉस मुझे लगता है 1 ही रुपए का होगा। बैंक में आएगा 7 रुपीज, 50 शेयर्स का, सॉरी 30 शेयर्स का 7 रुपीज, बट उसको मल्टीप्लाई होगा 8 कॉल्ड अप से 240। सो द डिफरेंस ऑफ 30 रुपीज इज द शेयर फॉरफीचर। अगेन क्या मुझे 250 माइनस 30 करना है? गलत हो जाएगा, क्योंकि एंट्री नंबर 1 में 50 शेयर्स का प्रॉफिट है, एंट्री नंबर 2 में 30 शेयर्स का लॉस है। गलत, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों 30-30 का होना चाहिए, क्योंकि आपने 30 शेयर्स को ही री इश्यू किए हैं। कैसे ढूंढे यार? 50 शेयर्स का जो शेयर फॉर फीचर है ना, वो तो 250 है, तो 30 का कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई दिमाग में या तो हमको नोटबुक में कर लेना है। हमें आता है 150। इट इज दिस 150 जो उस 30 शेयर्स का प्रॉफिट है, उसके आप 30 माइनस करोगे, आपको आएगा 120 एंड देन योर नरेशन एंट्री। और ये प्रॉब्लम ख़त्म ज़रूर होता है, एंड आई डोंट थिंक मैंने इतना समय लिया। ओके, मैं थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने टाइम के लिए ये रिकॉर्डिंग चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे डिस्प्ले पे नज़र नहीं आता, बट आई थिंक इट हैज़ बीन अ शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इशू में एज वेल एज री इशू में क्या क्या इशू हो सकते हैं, फॉर फ्यूचर में क्या क्या इशू हो सकते हैं, क्या क्या वेराइटीज़ हो सकते हैं, ये सारा तामझाम इस प्रॉब्लम के अंदर हमने कवर अप कर लिया है। थोड़ी और वैरायटी बच जाती है, आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में उसको कवर अप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो शेयरिंग करते रहिए, और अगर आपको हमारे साथ कुछ बातचीत करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूं, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।